ਆ ਸੁਹਾਵੀ ਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੈਗ ਜਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਬੈਗ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬੈਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 3-4 ਪੈਲਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦੀ ਕਿੱਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਨਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿੱਟ ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ 2-2 ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-2 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲਟ 2-2। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੰਦ ਨੇ मैं बहुत लापरवाह। हाँ अब इसने मुझे बोला डायरी बैग में तो नहीं है, तो मैं बताऊँ कहाँ है। हाँ बैग में नीचे वो है, लेकिन जब जहाँ पे ब्रशेस रखते हैं वहाँ पे जिप है ना। हाँ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆਊਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈੱਡ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਏਅਰਿੰਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਈ। मुझे ऐसे लग रहा है सोशल मीडिया क्लास टुडे। नहीं फिर सनस्क्रीन हट रहेगी। तुलसी पूरी स्किन केयर कर दी है अगली। आयुषी की रात की कोई शिफ्ट लंबी है। अच्छा तू ही कुछ बोलना। की एचआर की जो है ना यूएस आईटी ਕੱਲ ਸੋਹਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਲਾਸ ਲੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹੋਈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਿया गौर नीचे मेंशन कर दूंगी बाकी मैं गौर लिख दिया यहाँ भी। तुलसी ਅੱਜ ਸੱਚ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। हेयर कैसे कर? ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਦੀਪਤੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ इंस्टाग्राम पे देख लो। दिखाओ दीप्ति दीदी। यार दीदी बोलने में कितना प्रेशर लगा रही है, निकल रही नहीं भाई दीप्ति दी कहने नहीं, वो सहारे दीप्ति कह रही है। हाँ मेरे तो दीदी निकलता ही नहीं बोल। ठीक है पता है मेरे दीदी ने तो 5 साल ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। हेलो यशी ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। दीप्ति दे कर्ल दीप्ति दीदी ये थोड़े जे कर्ल खिलर गए आयुषी दे। पैर में क्या हुआ? वक्त में थक गई। हड्डियां चाहिए भाई। ਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। वेरी नाइस। लगाने वाले हो बहुत अच्छा। दीप्ति दी बहुत टैलेंटेड है ना। यार कई सिंगर्स है, सुगंधा शर्मा फॉर एग्जांपल, वो रियल ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऑनेस्टली हाँ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
पर वो ना कुछ ज्यादा ही एक्टिंग भी ओवर एक्टिंग करती है ਗਾਣੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੌਗ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ आपने वकालत ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं वकीली आपने वकालत छोड़ के ये मेकअप में घुसने की ताकि ये जो क्लाइंट होंगे ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो नहीं वकालत क्यों छोड़ दी वकालत अच्छा सेशन होता है मेरा इंटरेस्ट नहीं बढ़िया मैं क्या मेरा घर वाला कर ली मैं नहीं करनी और सारे गुण तो होगी नहीं हाँ सारे वाले ने वो 5 साल रहते उस स्ट्रीम में ना असर आ गया है ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ कहाँ से कर लो पंजाबी यूनिवर्सिटी ਸ਼ਹਿਜ਼ੀਨ ਦੀਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 11 ਪ੍ਰੋ ਹੈ ਬਸ ਦੀਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ कह रही है नहीं कह रही है जरूर जरूर लेके दिखाओ नाले वैसे भी बहुत ठंडा जरूर जरूर सी है ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ जरूर ਦੀਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਉਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੀ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ पार्टी क्या होती है बस हो सकती है यस टोटली हुआ यू कोई कुछ ना बोले हैं सुन नहीं रहा मैं बोल भी नहीं हो रहा ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸਿਆ ਕਰੂੰਗੇ अरे थम जा ਸਮਝਾ ਥਮ ਜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ नहीं नहीं मैं रिमूव कर दूंगी मेकअप रिमूवर ना मेरा नाम किंग मत बिगाड़ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ नहीं 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 बिगाड़ रही पहले क्यों मेरे कौन सा बिल्कुल सही शक्ल बनाई है उधर ब्लॉग ਹਾਏ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ऑटोग्राफ नहीं बस कोई ना करो यार ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਤੁਲਸੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ अच्छा नहीं लगा तेरे को ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ very short, not more than 10 seconds. 10 seconds is also on the higher sides. So आपने खुद कभी नोटिस किया होगा जब आप रील्स ब्राउज करते हो तो 3-3, 4-4 सेकंड की रील्स होती है, आप कितनी बार देखते हो उसको? कंटेंट अच्छा लगा, निकल भी गया, फिर देखते हो उसको 5-6 बार तो आप ही देख लेते हो एक ही बार. तो that is how it's a trick to make the reel go viral. बार देखते हो. और चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे हमने अभी रिसेंटली ये डाली थी, हाँ सॉन्ग्स पे भी आते हैं. सो जैसे ये रील थी तो इसमें ये कैप्शंस जो टेक्स्ट डाल सकते हो रील के अंदर, एक तो नीचे जो आता ही है लाइक दिस थिंग, दिस ब्राइड रॉक हर मदर इन लॉज वेडिंग आउट इन फॉरेस्ट. सो ये कैच फ्रेज आ गया, पीपल इट जनरेट्स क्यूरियोसिटी. तो वैसे कुछ भी सोच के. सो देयर वाज अनदर वन जिनकी आउटफिट नहीं आई थी, हमारे एक ब्राइड थे. आई रिमेंबर इट वाज सच अ controversy. So if you've seen this Pakistani designer Mohsin Naved, you heard about him? Very famous Pakistani designer Mohsin Naved Ranja, very very popular. तो आजकल पंजाब में बहुत आउटफिट्स आ रहे हैं. हमारी यूएस की एक ब्राइड थी, उनका आउटफिट ही नहीं आया, वेडिंग पे आउटफिट ही नहीं आया. हमने इतनी कोशिश करी, वो दुबई में स्टक हो गया, didn't come, and she wore her Sangeet outfit. So उसमें हमने लिखा था दिस ब्राइड
her outfit did not come, but she rocked her Sangeet outfit for the wedding. तो वो भी काफ़ी चली थी, तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप, ठीक है. So yeah, this one, like this bride's wedding outfit did not reach her. Client thinks, you know, आप जो viewer है सोचता है कि अच्छा क्या किया फिर इसने. So right, so you can do some things like this. रील्स का ये है कि रील्स वायरल हो जाती है, आपको उससे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं, आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोअर, यू नो, इंटरेस्ट आपसे रिलेटेड चीज़ों में होगा, वैसा फॉलोअर, नॉट एनी यूजलेस फॉलोअर कि यूट्यूब ये है आपको फॉलो कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं आपको. सो नॉट दैट थिंग. सो आई टेल यू व्हाट इज द पावर ऑफ अ रील. सो दिस इज आवर मोस्ट वायरल रील वी हैड, दिस वाज 12 मिलियंस. तो इसमें आपको अपनी इनसाइट्स, आप अपनी पोस्ट की इनसाइट्स भी दे सकते हो, आपको पता लगता है कि कहाँ तक कितने लोगों तक पहुँचे. सो यहाँ पे प्रेस करते हो, यहाँ पे इनसाइट्स आते हैं, यू कैन सी 45,000 लोगों ने तो सेव करी है, राइट. एंड इट रीच्ड, इंस्टा और फेसबुक दोनों का है इसका ही, तो इट रीच्ड like 1 crore something people, and then so many, you know, millions, your things. I remember why am I sharing this with you. Just from this reel itself, in a span of 1 month, we got about 10,000 to 12,000 followers with this reel. तो हम रील्स वगैरह पे डालते हैं, पोस्ट पे डालते हैं, कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना, आपको मैनुअली डालना है. These are very, you know, minor tricks you have to take care of. Hashtags कौन से डाल रहे हो वो बहुत मैटर करता है. You know, कुछ भी hashtags डाल रहे हो, फूड वाला बंदा आएगा आपके पास, देखिएगा फूड तो है नहीं, क्यों लाइक करो इसको मैं, ठीक है. हैशटैग्स चेंज भी करते रहना, ऐसे मत करना कि सेम हैशटैग्स डालते जा रहे हो. कीप चेंजिंग योर हैशटैग्स, ओके, राइट. एंड कीप टैग्स these pages, like these wedding blogging or vlogging pages like this. Wedding Good का अलग पेज है, there's Brides of India, Brides of Punjab, then there's Zowed, then there's Wedding Sutra, many of them. उससे क्या होता है कि कई बार उनको कंटेंट अच्छा लगता है तो वो अपने पेज पे रीशेयर कर देते हैं. रीशेयर होता है, एक पेज ने डाला, जैसे वेडिंग गुड ने डाला, उसको देख के 100 पेजेस और डाल देंगे उसमें, तो आपकी वो पोस्ट वायरल हो जाती है. आ रहा होगा पोस्ट. सो कभी भी आपने स्क्रॉल करते करते आपको स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ कंटेंट आता है, वो पेड प्रमोशंस होती हैं, वो उन पेजेस ने पे किया होता है इंस्टाग्राम को और एक ऑडियंस क्रिएट करी होती है, तो आपके तक पहुंचता है. बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दिस इज़ अ वेरी गुड टूल, बट इसका काम है आपके तक व्यूअरशिप लेके आना, कंटेंट ऑन योर पेज. सो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दीज प्रमोशंस, मेक श्योर यू हैव अबाउट 7 to 8 bridal pictures, like bridal women on your page, 7 to 8 of them, and party makeup तो बहुत कर लोगे चलो, ठीक है. तो आपके पास एक पेज अच्छा से क्रिएट होना चाहिए, तभी आपको कोई यू नो कुछ मैसेज या क्वेरी भी डालेगा या कुछ कन्वर्ट भी होगा. मैम अकाउंट भी प्रमोट हो सकता है, जैसे मैंने बूस्ट पोस्ट किया था तो उसमें सिर्फ वो पोस्ट बूस्ट हुआ था, पोस्ट ही होता है, अकाउंट में पूरा प्रोफाइल जैसे. सो कैसे करेंगे अकाउंट पोस्ट? आप कर रहे हो एकदम से, आपको पहले बता दिया, आपका फेसबुक पेज लिंक होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है. सो फर्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट अ गोल आता है. सो सिलेक्ट अ गोल में लिखा होता है मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट्स, मोर मैसेजेस. व्हाट डू यू थिंक यू नीड? प्रोफाइल विजिट. व्हाई नॉट वेबसाइट? यू डोंट हैव वेबसाइट, हाँ भेजोगे, है भी तो क्या, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, यू नो, वेबसाइट देखेगा, मैसेज काम करो, दोबारा जाओ. People are lazy, they don't do it. Okay. Then more messages. Why would a stranger message you? अगर नीचे आ रहा है मैसेज दें, क्यों करेगा आपको मैसेज? प्रोफाइल विजिट कर लेगा कि अच्छा देखते हैं क्या. तो यही चीज़ वहाँ पे लिखी आती है प्रोफाइल के ऊपर. अगर प्रोफाइल विजिट करोगे आएगा नीचे विजिट देयर प्रोफाइल, विजिट देयर वेबसाइट, DM देम, ऐसे आएगा. तो हम फर्स्ट करेंगे सिलेक्ट मोर प्रोफाइल विजिट्स. इसमें नेक्स्ट प्रेस करोगे आप. सो नेक्स्ट प्रेस करके यहाँ पे एक आता है डिफाइन योर ऑडियंस करके.
I have specific people for this, though I know I've been doing this for ages now, but I've actually hired someone now who does this for me. And you can also do it, but then I would say starting में आप खुद ही करके देखो, जब आपके पास enough income आ रही है इस चीज़ से, then only it makes sense. फर्स्ट आता है ऑटोमेटिक, इसको नहीं करना कभी भी. ऑटोमेटिक इंस्टा आपके लिए खुद क्रिएट करता है कि आपके किस तरह के फॉलोअर्स हैं, किस तरह के लोग. नाम आप कुछ भी रख दीजिए. अगर जैसे आपको अलग अलग ऑडियंस आपने देखा था, इसमें पहले चंडीगढ़ दिल्ली आ रहा है, तो उसने बना लिया चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, ये अकेडमी की है, ऑल दैट, राइट. सो XYZ कुछ भी मैंने लिख दिया, XYZ. देन आता है नेक्स्ट लोकेशंस. अब इसमें दो तरह की लोकेशंस आती हैं, एक रीजनल लिखा हुआ है, एक लोकल लिखा हुआ. रीजनल में करते हो, लोकल में करते हो तो यहाँ पे रेडियस आता है. जब आपको कोई लोकल ऐड चलानी है, समझते हो कि आप जहाँ पे खड़े हो इसके 30 किलोमीटर्स के रेडियस तक आप ऐड चला सकते हो. ठीक है, तो इसमें करंट लोकेशन ऑन कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो बढ़ाती जाऊँगी, ये पूरा चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया आ जाएगा, 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही आ जाएगा. ये तब करना है जब आपको कोई लोकल ऐड चलानी है, जैसे कोई सेल्फ मेकअप की क्लास करनी है आपको, या कुछ वो चीज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ योर रीजनल. इसमें आपको मैनुअली सिटीज़ डालनी पड़ेंगी. जैसे आप सिर्फ पंजाब में काम करना चाहते हो तो पंजाब की जो भी आपको सिटीज़ है बताइए मेरे को. यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करना ऑडियंस एन ए आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हो. सो टेल मी सम सिटीज़ ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ लिख दिया, चंडीगढ़ आ गया. लुधियाना लिख देते हैं, लुधियाना आ गया. ऐसे आप बहुत सारी सिटीज़ लिख सकते हो. चलो, और पैन इंडिया की जगह मोहाली. आपको मैनुअली डालना पड़ेगा सब कुछ. पैन इंडिया भी कर सकते हो, जरूरी नहीं पंजाब है. सो अगर एक बनाते हो इंडिया की बना लो, बहुत वाइड हो जाती है. उसमें आप दिल्ली, मुंबई, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है. उसी सिटीज़ जो सिटीज़ टैप करोगे वहीं पे जाएगा. ठीक है, तो मोहाली हो गया. देन और क्या लिख सकते हैं, जलंधर हो गया, जलंधर हो गया. चलो, पटियाला, मुक्तसर. अब ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा जस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट बीइंग biased or anything. I come from Muksar, that's a separate story. But this has been because I've stayed in Chandigarh like since 2000. It's what, 22 years that I've lived in Chandigarh. Okay. In Chandigarh, sometimes people think, यहाँ पे बहुत well-off families and all that, people will spend on these things. But the reality is, local Chandigarh people, they do not spend on these kind of luxury services. अगर आपके स्पेशली प्राइसेस ज़्यादा हैं. चंडीगढ़ में दिखावा ज़्यादा है, वेरी ऑनेस्टली सेइंग. मोहाली में, पंचकुला में आपको बेटर लाइन मिलता है एज कम्पेयर टू चंडीगढ़. चिक नहीं करते हैं चंडीगढ़ वाले, बहुत करते हैं. मेरे को चंडीगढ़ से बहुत करती है, तो दैट्स द रियलिटी. फिर आते हैं कुछ एरियाज, जस्ट टेलिंग दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक. मालवा समझते हो पंजाब में क्या क्या आता है? तो लुधियाना, मुक्तसर, फरीदकोट, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा, मोगा, ये सारे, ये लैंडलॉर्ड बेल्ट है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे, बट जो एक थिंकिंग है यहाँ पे, तो उसमें खुद उन लैंडलॉर्ड फैमिलीज में से हो कि एक लड़की की शादी ना सबसे बड़ी चीज़ होती है उनके लिए. वो सारी ज़िंदगी शायद वो लड़की कहती है मुझे ये ले दो, नहीं लेके देंगे, और वो शादी वाले दिन बोल देते हैं अच्छा जो कराना करा ले. ये रियलिटी है. If you guys come from similar families, you can relate to it. Your fathers might be very strict otherwise, but शादी के मामले में चल अभी चक ले, अभी ले ले, अच्छा सबसे सच्ची होने पाले. ठीक है, ये रियलिटी है. तो ये बहुत हाई पेइंग बेल्ट है. तो अगर आप कुछ एड्स लगानी है इस बेल्ट में लगाइए, बहुत बिजनेस करता है. I think when I started, probably because I was from Muksar, तो maybe people were biased towards me. तो मुझे उस साइड से बहुत काम मिलता था उस टाइम पे. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ ट्रैवल में कम करूँ. तो आई जनरली ट्राई कि जलंधर बहुत पास है, 2 घंटे गए वापस आ गए, 1.5 घंटा ही लगता है तो जलंधर से. सर आई हैव टू स्टे देयर ओवरनाइट. फिर इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो, बट फॉर यू गाइज इनिशियली इट्स गुड एरियाज टू टैप.
एरिया NRIs बहुत अच्छा पे करते हैं आपको, ठीक है। सो जलंधर हो गया, कपूरथला हो गया, देन फगवाड़ा, हुशियारपुर, ये भी बहुत अच्छी बेल्ट्स हैं। थोड़ी सी लेस पॉपुलर बेल्ट्स हैं इन पंजाब इस गुरदासपुर एंड पठानकोट, थोड़ा कम आता है वहाँ से, इतना ज़्यादा पे नहीं करते लोग, इतना ट्रेंड नहीं है। फिरोजपुर ऑल्सो इज लिटिल लेस, आई वुड से, इतना ज़्यादा नहीं है, बस फिरोजपुर थोड़ा बैकवर्ड एरिया भी है, बॉर्डर के पास बॉर्डर थोड़ा बैकवर्ड है, तो मालवेजी होता है बट थोड़ा बैकवर्ड है, बट स्टिल इट्स पिकिंग अप, ट्रेंड्स पिक अप एंड ऑल दैट। सो जस्ट टेलिंग यू कि कहाँ आपको टैप करना चाहिए, ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ये नॉलेज भी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन, अब मैंने सिर्फ तो यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आ रहा है, ये फाइनल ऑडियंस नहीं है, दिस इज़ लाइक 5 million to 5.9 million पीपल, ठीक है। इतनी रीच है अभी जो आप ऑडियंस ले रहे हो, इसकी मैक्सिमम रीच ही हो सकती है 5.9। हमने ये कर दिया, डन कर दिया, फिर आता है इंटरेस्ट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें। इंटरेस्ट में क्या है कि जो आप इंटरेस्ट डालोगे, जैसे आपने मेकअप डाला इंटरेस्ट, आपने फैशन डाला इंटरेस्ट, क्लोथिंग डाला आपने इंटरेस्ट, the ad will go to a person who is interested in these kind of things, जिन्होंने या तो ऐसे पेजेस लाइक किए हुए हैं या वो ऐसे पेजेस को ब्राउज करते हैं, तो इंस्टा हैज़ योर एवरीथिंग। यू मस्ट हैव सीन, आप आज कुछ कभी आप सोच रहे होते हो या कई बार कुछ हल्का सा गूगल सर्च ही किया होता है, आपको बाद में इंस्टा पे भी वो आना शुरू हो जाता है, फिर अमेजोन पे भी, फेसबुक पे भी वही चीज़ सजेस्ट होती है। सो योर ब्राउजिंग पैटर्न्स हम लोगों को कमीशन देते रहते हैं ना, तो वो स्टोर होता रहता है। तो दिस इज़ वॉट इज़ गोना गिव योर एड द रीच, द ट्रू रीच। जैसे इसमें सबसे पहले आया सब्यासाची, एवरी ब्राइड इज़ नोन टू इट, सो सब्यासाची मुखर्जी लिख दिया, मनीष मोहता, आप डिज़ाइनर्स के नाम डाल दिए, मेकअप के नाम डाल दीजिए, कुछ मैं लिख देती हूँ, कुछ यहाँ पे सजेस्टेड ही आ जाते हैं, तरुण दयानी, there's अनीता डोंगरे, there's मनीष मोहता, and there's designer clothing, ऑनलाइन शॉपिंग स्पेंड करता होगा वही आप में, एक ही लग्जरी सर्विस ही है बेसिकली, ठीक है। क्लोथिंग हो गया, फैशन एक्सेसरीज, एक जितनी मर्जी डाल सकते, 30, 40, 50, 100 डाल दो, वो आपके ऊपर, आपकी इतनी ज़्यादा ऑडियंस इन्हांस होती जाएगी। तो ऑलरेडी ये 4-5 डाले हैं तो ऑडियंस कम हो गई है थोड़ी, 4.2 to 4.9 मिलियन पे आ गई, ठीक है। ये डन कर देते हैं। देन आता है एज, मेल फीमेल, मेल को दिखानी है, फीमेल नहीं, काम के नहीं है वैसे भी काम नहीं, ठीक है। देन इज योर जेंडर, तो जेंडर में व्हाट डू यू थिंक इज द एप्ट एज, यहाँ पे 18 to 65 दिखा रहे हैं, कम भी चला जाता है, 13 to 65 की रेंज है आपके पास। व्हाट डू यू थिंक इज द एप्ट रेंज ऑफ चूजिंग एन ऑडियंस, व्हाट इज द ब्राइड्स age of marriage आजकल, let's not 35, yes, 35 is good enough। कई बार आपके कोई एल्डर सिस्टर्स होती हैं तो सजेस्ट कर देती हैं आपको, सो 35 ना 40 तक भी कर सकते हो, क्योंकि 40 तक थोड़ा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी होते हैं लोग, ठीक है। उसके सो 40 तक कर सकते हो, 38, 35 एंड ये वाली रेंज कितने होनी चाहिए? 18। इतनी जल्दी शादी लगाते हैं कोई? 20-25 आई नो सजेस्ट कर देंगे, कोई छोटी बहन होगी ना, बट 21 इज़ गुड इनफ। आजकल स्टिल इन इट्स टॉक अबाउट बनियान कम्युनिटीज़, अभी भी 20-21 में सबकी शादी हो जाती है, काफ़ी लोगों की हो जाती है, ठीक है। तो आई हैड वेरी यंग ब्राइड, 20-21 ईयर्स, सो 21 to 40 गुड इनफ। आपकी ऑडियंस कहाँ पे आ गई, मिलियन से थाउजेंड्स में आ गई, सो इट्स 900, सो क्लोज टू 1 मिलियन, ये रीच हो गई, डन हो गया। अभी खुश हो रहे हो कि यार इतने लोगों तक पहुँच जाएगी ऐड, होएगी, आप मुझे पैसे डालोगे ना जितने उतनी रीच आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट करेंगे, अब हमारी ये XYZ ऑडियंस सेव हो चुकी है, नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आता है बजट एंड ड्यूरेशन। आपका बजट और आपकी ड्यूरेशन ही फाइनलाइज करेगा कि कितनी लोगों तक आपकी
आपकी ऐड पहुँचेगी। वो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वही चीज़ है, राइट। सो लेट्स से मुझे 5 दिन की ऐड चलानी है तो 200 रुपये डेली, इनका मिनिमम आता है 120 या डेली। फिर भी न्यूज़पेपर्स में और इसमें देने से तो बहुत चीपर है ये चीज़, एंड न्यूज़पेपर्स अब कोई पढ़ता भी नहीं है। आपकी हमारे जो एज के लोग होते हैं 20 से लेके 35-40 तक भी कोई नहीं पढ़ता आजकल। पापा जी पढ़ते हैं तो सुबह उठ के न्यूज़पेपर, आज नहीं पढ़ता, ठीक है। सो 5 डेज़ हो गया, तो 120 में क्या है 600 ओवर द स्पैन ऑफ 5 डेज, इसमें टैक्स भी लगता है जाके आगे। तो सिर्फ 600 रुपये खर्च किए हैं तो सिर्फ 18,000 लोगों तक मैक्सिमम रीच है इसकी। ज़रूरी नहीं 18,000 ही होंगे, 6900 to 18,000 का है। वो आपकी क्वालिटी ऑफ द कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, आप कैसी पोस्ट पे लगा रहे हो। ये जादू नहीं है, आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। सो लेट्स से 5 डेज़, सो 5 डेज़ मैंने 400 रुपीज़ डेली लगाया, 2000 रुपीज़। सो 5 डेज़ 23,000 to 60,000 पीपल आई कैन रीच। सो नेक्स्ट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा आपका सिनॉप्सिस आ जाएगा। तो इसमें एस्टिमेटेड टैक्स लग गया 360 रुपीज़, 80% GST लग जाता है इस पर। तो टोटल स्पेंड हो गया 2360। सो वंस ये डन कर दोगे, पोस्ट प्रेस कर दोगे, वो रिव्यू के लिए जाती है, फिर ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो मेरा इसमें प्रीपेड वाला, इसमें बैलेंस शो करेगा कि 9,000 रुपीज़ बैलेंस है इसके ऊपर, अभी हमारी कुछ पोस्ट चल रही है। कुछ चीज़ें ध्यान रखना, आपके ऐड अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे कि कभी भी ये ज़ीरो नहीं जाना चाहिए बैलेंस, अगर आप प्रीपेड कर रहे हो एंड आपकी ऐड चल रही है, वो बंद हो जाते हैं, ज़्यादा बार बंद हो रहा है, ऐसी चीज़ हो रही है, तो अकाउंट्स आपके दे काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट योर अकाउंट्स, फिर वो डिसेबल हो जाते हैं, उसको इनेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ योर थिंक अबाउट पोस्टिंग योर प्रमोशंस। अगर ये ज़ीरो है तो हम इसमें कैसे पे करेंगे? UPI, GPay कुछ भी इसमें अपलोड, मतलब उसमें ऑप्शन आता है कि तो पे अमाउंट, बिल्कुल यहाँ पे पेमेंट्स पे जाओगे, इसमें भी आ जाएगा जब आप लगाओगे। इसमें ऑलरेडी मेरा बैलेंस है तो ये लग जानी थी। अगर आपका बैलेंस नहीं है फिर वो पेमेंट्स पे लेके जाता है आपको। फिर भी नहीं हो रहा है, अगर बीच में से आपको लग रहा है कम हो रहा है और आपको पैसे डालने हैं, तो इसमें जाते हो, जो ये आपका सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, तो इसमें सेटिंग्स पे जाते हैं, पेमेंट्स का ऑप्शन आता है, ऐड पेमेंट्स, पेमेंट मेथड्स आते हैं फिर इसके अंदर। तो मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? 1 रुपीज़ भी होगा या 10 रुपीज़ भी होगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऐड कितनी चल रही है। मेरे पास 20,000 का बैलेंस था जब मैंने किया था, अब ऐड चल रही है तो इतना रह गया, तो फिर डालेंगे। तो वो अपने आप तो यहाँ पे आ रहा है ऐड फंड्स, वो अपने आप चलता रहेगा, जितनी उसने एक दिन की निकाल ली वो करता रहेगा, ठीक है। चलो निकालिए 20,000 रुपीज़ ईच। कितनी देर तक लाइव चलानी चाहिए? 5 डेज, 3 डेज? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, पर 2-3 दिन की एड्स मत लगाइए ऑनेस्टली सही। एक साथ मिनिमम एक हफ्ते की ऐड लगाइए, क्योंकि इसको ऑप्टिमाइज़ होने में भी टाइम लग जाता है। कई बार क्या होता है, पहले 2 दिन इतनी चलती नहीं है, उसके बाद ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, तो उसकी रीच और बढ़नी शुरू हो जाती है। तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, ROI होता है ऑल दैट, नॉट गो देयर, इट्स वेरी इंटेंस, बट आपको ये कर करके खुद ही आ जाएगा। पैसे, इंस्टाग्राम को पैसे चाहिए, जितने दे दोगे वो खुश हैं, आप सारा प्रोफाइल ही डाल दो चाहे। और इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने शुरू हो गए हैं, तो जितने फॉलोअर्स होने चाहिए, फॉलोअर्स से नहीं आते। जो आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस था वो भी इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आ गया है, इसमें आपके अकाउंट्स में आ चुका है अभी। सो इफ आई शो यू दिस, तो इसमें आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, पेमेंट्स, एक सेकंड देखते ये। सो जब आप सेटिंग्स में जाते हो, सो यहाँ पे प्रेस किया, सेटिंग्स में जाते हो, फिर बिजनेस पे जाते हो, मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो यहाँ पे आता है मोनेटाइजेशन स्टेटस। यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, आई एम एलिजिबल, बट अभी इंडिया में इससे मॉनिटरी मतलब डायरेक्ट इंस्टा से पेमेंट्स आनी शुरू नहीं है। इन US एंड ऑल इट्स फंक्शनल नाउ। सो उसमें क्या आपके रील्स के व्यूज़ से आता है, ठीक है। सो रील्स के ऊपर जितने व्यूज़ हैं एंड ऑल दैट उसके ऊपर आता है। मैम ये वो है ब्लू टिक वाला जो होता है,
ब्लू टिक इज जस्ट नहीं होता. प्लीज डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स. ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसे दे के आप ब्लू टिक ले लोगे. देयर इज नथिंग लाइक दैट. इन ऑर्डर टू गेट अ ब्लू टिक उसके ऊपर वो भी लिखी हुई होती है जो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि आप एक नोटेबल फिगर हो, यू नो, यू आर पॉपुलर एंड आपके बारे में बहुत, यू नो, पॉपुलर कैसे लगा, आपका न्यूज़ में आता है ज़्यादा, या यू आर अ सेलिब्रिटी, बहुत ब्लू टिक लोगों के साथ आपकी पिक्चर्स आती हैं, कुछ भी आपके ऊपर आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. विकिपीडिया के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आता है, नॉलेज पोर्टल है, बहुत चीज़ें हैं उसमें. डोंट फॉल फॉर दिस. मुझे पता है ये बहुत लोगों को आता है, मुझे भी आता है कि वो +1 वाले नंबर से विल गेट यू ब्लू टिक, प्लीज़ फॉलो इन दिस लिंक. डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक्स. कभी बिजनेस आता है. सो एक जो यू नो एक अननोन जो मेरे पास कोई क्वेरी आ रही है, लाइक द पर्सन हैज़ नॉट मेट मी, द पर्सन हैज़ नॉट सीन माई वर्क इन रियलिटी कभी भी, ठीक है, तो वो होती है, उस तरह की लीड होती है. एक होती है वर्ड ऑफ माउथ की लीड होती है, जो सबसे पहले चलती आ रही है, शुरू से चलती आ रही है. आपने बताया पोस्ट बहुत अच्छा है, अपने फ्रेंड्स को बताया, वो आएंगे आगे. उसमें शॉर्ट होता है. आपकी फ्रेंड ने मेकअप कराया, आपने उनका मेकअप देखा, आपकी फ्रेंड ने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छा, शी इज़ वेरी नाइस, मेकअप में भी वैसे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोग सब कुछ देखते हैं कि एटीट्यूड कैसा है एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो पक्का बुक करेंगे. ये जो इंस्टा से पहले ऐसे बिजनेस चलते थे, ऐसे पूरी होता था कि इंस्टा की वजह से चल रहे हैं, ठीक है. तो एक ये होता है जो हमेशा वर्ड ऑफ माउथ होता है आपका, शॉर्ट रहेगा, एक इंस्टा है. फिर एक और चीज़ है योर वेडिंग पोर्टल्स, आप रजिस्टर कर सकते हो. सो वेड मी गुड इज़ वन, आई थिंक सबको पता होगा. वेड मी गुड बहुत पॉपुलर हो चुका है, ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है. सो कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिससे वेड मी गुड हो गया. शादी सागा होता था वो, इट्स बीन बॉट बाय भारत मैट्रिमनी, तो इट्स नेम्ड एज वेडिंग बाज़ार. वो भी एक अच्छा पोर्टल है. बट प्लीज़ डोंट register yourself on every XYZ traveling with the other bride by the time सुबह कर लिया. फिर वो दूसरी ब्राइड ख़त्म करी, करते करते घर पे आए 10-11 बज गए, 3 बजे नहीं था 11 बज गए. घर वालों को देखा नहीं देखा, बात करी नहीं बात करी. अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे, it will start affecting your psyche, your mental health. पागल हो जाओगे आप. आपके पास होता कौन है? I'll have my driver, I'll have my team or my hair artist or you know the bride. And अगर आप इन लोगों से भी बात नहीं कर रहे हो, इनसे भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर इनटू योर ओन सेल्फ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, ऑल दैट. पीपल हैव दिस थिंग, आई हैव सीन. सो दैट शी वाज काइंड ऑफ माय नेबर एंड शी न्यू मी थ्रू माय प्रीवियस वेंचर and she got ready from me. And mind you, her best friend is also a very popular artist in Chandigarh itself. She did not get ready from her, she got ready from me. And क्या हुआ बेचारी, उस दिन क्या हुआ, हमारे पास I think I had 4 to 5 brides that day, and she was the first one who came. But एक और bride जो late हो गए, पर उनको जल्दी जाना था, कहीं बाहर जाना था, वो स्पेशली यहाँ पे आए थे रेडी. अब उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो पहले आके बैठी हुई है, बट क्योंकि उसके 11 बजे अनाथ कार्य से मैंने यार तो आराम से चिल कर ले, कुछ हमारा थोड़ा फ्रेंडली था, तो मैं यार तो बैठ जा, कोई नहीं, तू हेयर करा ले, और अब कर लेंगे बात. तो करते करते वो बेचारी डिले होगी जो सबसे पहले आई थी. And then she was like, "Now we are." I said, "I'm very sorry, but it is how it is. I apologize. मुझे पता है मेरी गलती है, but क्या करूँ, दूसरे का भी, you know, उसकी गलती थी, उसकी वजह से सबका डिले हो गया है." उसके बाद में मैसेज भी आया मुझे, कहती ना the makeup was amazing and everything, but I was a bit disappointed कि मैं इसी वजह से सुबह 7 बजे आके बैठी हुई थी कि मेरे को ना बाद में इमोशन ना हो कि एकदम से मुझे जाना है. मैं क्या, आई अपोलोजाइज हैंड्स फोल्डेड, बट मैं यही कर सकती हूँ. अगर आप यहाँ पे अड़ जाते नहीं तो क्या हुआ, मेकअप अच्छा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, गिव अ बैड एटीट्यूड अबाउट इट. शी वुड राइट अ वेरी नाइस रिव्यू अबाउट यू, ठीक है. एंड नेगेटिव ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है पॉजिटिव से, आप चाहे अदरवाइज बहुत अच्छे हो, ठीक है. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. whenever you're going to a client, dress up nicely. I'm not saying कि आप सुबह सुबह हील्स डाल के चले जाओ एंड टिप टॉप मेकअप करके जाना है. इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, अमेजिंग, दैट विल हेल्प यू. क्योंकि आप अगर खुद प्रेजेंटेबल नहीं हो, खुद दूसरे बंदे को क्या प्रेजेंट करोगे, तो सुनेगा भी नहीं, बोलेगा खुद तो ऐसे आ रहे हो, मेरे को क्या बता रहे हो क्या लगाना है, आपको क्या पता, आपको क्या पता स्टाइलिंग के बारे में.
does not look professional. At least this is what I personally feel going in your PJs and in your leisure wear. आप ट्रैक सूट डाल के जा रहे हो, इनमें से बाल लेके जा रहे हो, don't do that. साइकोलॉजिकली हाँ होता है थोड़ा, it's your profession. अब आप कहीं किसी होटल में जाते हो खाना खाने जाते, स्टाफ कितना वेल ड्रेस्ड होता है. इसलिए जॉब, नो मैटर आप सुबह 5 बजे जाके काम करें, आपका काम तो काम है, जाना तो अच्छे से करके बस काम. आई डोंट थिंक आई एवर गॉन टू क्लाइंट विदाउट टेकिंग सम लिटिल मेकअप एंड हेयर अच्छे से किया हुआ है, या एटलीस्ट कपड़े तो ढूंढ के जाना है. सो आई वुड रेकमेंड अवॉइड दैट. ठीक है. व्हाट एल्स, प्राइसिंग की बात करते हैं. एंटी डेली जो आजकल कि दीदी मैं करती नहीं करना है, इतने सारे इतने वधिया आर्टिस्ट ने, मेरे को कौन होगा. तो ऐसा नहीं है. मैंने भी जब शुरू किया था, जो अभी के यहाँ पे ट्राइसिटी के टॉप आर्टिस्ट हैं वो मेरे से पहले के हैं. बट ठीक है, आपकी मेहनत होती है तो एट पार. आई वुड से आई एम नॉट बेटर देन देम, बट आई एम एट पार विद देम. आई नो इट. ठीक है. सो मुझे भी टाइम लगा है, आपको भी टाइम लगते हो जाएगा. जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा. सो प्राइसिंग की बात पे आते हैं, बट कंपटीशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा है. सो यू हैव 10 मेकअप आर्टिस्ट सिटिंग हियर, एंड हाउ वुड यू काइंड ऑफ जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग. तो आई वाज लकी व्हेन आई स्टार्टेड. देयर वर नॉट मेनी पीपल. आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी लेस प्राइस. आई स्टार्टेड विद माय आउटस्टेशन ब्राइडल दैट टाइम वाज 45,000. आई स्टार्टेड. ठीक है. तो बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी. तो स्टार्टिंग में अगर आप लोकल आपको करना है तो 12 to 15,000 इज़ अ गुड प्राइसिंग फॉर अ ब्राइड. ओके. 10 to 15 कर लो, 12 to 15 कर लो, इट्स अ गुड प्राइसिंग. क्योंकि इतना प्राइस तो एक सलॉन भी ले लेता है. ठीक है. तो आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हारे पास क्यों, आप तो अब नए हो. 12 to 15,000. ओके. 12 to 15,000 डज नॉट मीन कि आप बहुत ही लो एंड ब्रांड्स दे रहे हो. लेट्स बी रियलिस्टिक. अगर आप 15,000 में एस्टे लॉडर का भी बेस देते हो, आपके पास बहुत कुछ बच जाता है. यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच. तो आपकी किट बिल्डिंग में टाइम लगता है, उसमें आपका बहुत कॉस्ट लगता है. यू काइंड ऑफ इन्वेस्ट अ लॉट इन दैट. बट इफ यू सी 15,000 में मेकअप कितना लगेगा, कुछ नहीं लग रहा. मे बी आप हेयर स्टाइलिस्ट को पे कर रहे हो 2,000 तक पे कर दोगे,